Namaskar, Namaste, and a very good day. Welcome to this Constitution Day special episode on 26th November of Shakti Sangam, celebrating the women power. As you join us through this episode, we would like to surprise you with a very special guest today from the rural villages of Maharashtra, the Sarpanch of Neera Shipkar rural village, Mrs. Tejashri Viraj Kakade Didi. On the other hand of the dialogue, we have a very accomplished, knowledgeable personality from Sharada University, the Dean of the School of Humanities and Social Sciences, Professor Dr. Anviti Gupta. And of course, welcoming you all on behalf of Sharda University, here I am, Dr. Radhika Vishalam Krishnamurthy, Chairperson of the Universal Human Values, Ethics and Indian Knowledge System Implementation Committee, Sharda University. Shri Ganeshaya Namaha. इस कार्यक्रम का श्री गणेश हम करेंगे एक प्रार्थना के साथ. Let us begin with a prayer of gratitude to our preceptors who brought us away from the darkness of disillusionment to this wonderful world of bright knowledge. We are here in a dialogue today as their product. Ajnanatimirandhasya jnananjanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri Gurave Namaha. On this auspicious occasion of Constitution Day, let's all reflect upon the guiding principles that shape our great nation, India. As we celebrate the adoption of our Constitution, let us celebrate the words of wisdom from our rich Indian heritage, which ever resonate. Satyameva Jayate. Truth alone triumphs. These powerful words from the ancient scriptures remind us of the essence of justice and integrity embedded in our constitution. Dharmo rakshati rakshitaha. This Sanskrit saying emphasizes the importance of upholding righteousness to protect ourselves and our society. From the Manusmriti, we draw inspiration. Yatra naryastu pujyante ramante tatra devataha. Where women are honored, there the gods are pleased. These shlokas encapsulate the essence of duty, selflessness, and respect for all. Influenced by such profound principles, our Constitution reflects a commitment to justice, liberty, and fraternity. Now is the time to know more about our eminent panelists who are a part of this meaningful dialogue that you all are waiting to experience. Ladies and gentlemen, Professor Dr. Anviti Gupta is an accomplished innovator, seasoned academician, and founder of Sharda University in Uzbekistan. Within 27 years of expertise in academia and administration, Dr. Gupta, a PhD in psychology, is a certified clinical hypnotherapist and a recognized counseling psychologist. Currently serving as Dean of the School of Humanities and Social Science at Sharda University, Dr. Gupta is a passionate teacher, researcher, and the advocate for education. Her influence extends globally with a certificate of appreciation from the governor of Andijan region, Uzbekistan. A published author,
and presenter at national and international conferences, Dr. Anviti Gupta's research interests include mental well-being, spiritual intelligence, and positive psychology. As a leader in education, she has designed training programs for organizations like the UP Police and Hindustan Aeronautical Limited. Let's welcome Dr. Anviti Gupta, a true luminary in education, as we applaud her outstanding contributions and leadership. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शक्ति संगम के इस एपिसोड में। सर्वात्मका शिव सुंदरा स्वीकारया अभिवादना तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आमुचाने जीवना शिव सुंदरा सुमनात तू गगनात तू तार्यांमध्ये फुलतोस तू सधर्मती जगतांमध्ये सर्वात त्या वसतोस तू चोहीकडे रूपे तुझी जाणीवही माझ्या मना शिव सुंदरा इस मराठी कविता जिसमें बहुत सुंदर प्रार्थना है और इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पर वो हमें हमारे धर्म के प्रति जो सद्भावना है उसे पूरी तरह से व्यक्त करता है। इसकी याद मुझे आती है जब जब मैं बात करती हूं श्रीमती तेजश्री विराज काकड़े दीदी से, जो सरपंच है नीरा शिवातकर, इस बहुत ही सुंदर और पूरे पुणे में अत्यंत नाम जिसने पाया है उस गांव की। मैडम का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शी इज अ BCA by qualification, Bachelor of Computer Applications. She is the first independent women sarpanch for Neera Shivatkar village and heading the population of 25,000 plus people in the village. This is the most famous village situated in Pune district in Maharashtra. Didi or Thai in Maharashtra has contributed for various socio-economic and environmental development projects for Neera Shivatkar village, community programs such as Women Entrepreneurs Mahotsav, Swachh Neera, Sundar Neera, pure drinking water facilities for everyone, and has established sewage treatment plan and supported for many women entrepreneurs in and around Neera Shivatkar village. Welcome, madam. We are indeed privileged to have you with us. Without an ado, going on to our panelist, Dr. Professor Anviti Gupta, madam. Madam. Thank you so much, Dr. Radhika. And it is indeed a privilege and an honor to have the very first episode of Shakti Sangam, which is celebrating women power, to have Miss Tejashree Kakade Didi as our first honorable guest, who is a luminary in her field, who is an accomplished sarpanch of the village, who is an epitome of wonderful leadership. आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे इस सत्र में, हमारे इस एपिसोड में, जहां हम ये जानेंगे कि दीदी ने या ताई ने अपनी जगह को कैसे बनाकर रखा, इस गांव के लिए उन्होंने क्या कुछ ऐसा किया और किन किन चैलेंजेस से, कठिनाइयों से गुजरकर उन्होंने अपना नाम कमाया। दीदी, आप हम सब के लिए एक
स्रोत हैं प्रेरणा की, एक विश्वास की कि हम सब में वो सामर्थ्य है कि हम जो स्वप्न ले सकेंगे, बना सकेंगे, हम उसको पूर्ण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज्ड महसूस कर रही हूँ कि मेरे को आपका सानिध्य मिला और मुझे ये मौका मिला कि मैं आपसे दो बात कर सकूं और अपनी सभी महिलाओं को एक ये प्रेरणा की जो स्रोत हैं उनसे मिलवा सकूं, ताकि वो लोग अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू सकें। जी मैम, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने जो कुछ कर दिखाया है वो हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का एक स्रोत है। और उसे देखकर, उसे जानकर, या इस पूरे प्रोसेस में जो भी आपने कठिनाइयों का सामना किया है और उससे आगे निकल के गई हैं, उससे हम सभी लोगों को एक संबल मिलेगा कि हम सब इन कठिनाइयों के साथ और बाद भी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ताई, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ, सल्यूट करती हूँ आपके कार्य को। और मैं ये पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी कि इस नीरा शिवितक्रार गांव की महिला सरपंच बनने तक आपका सफर कैसा रहा? आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अपने अनुभव के बारे में हमें कुछ बताएं। जी ताई। नमस्कार, नमस्कार ताई। मेरा नाम तेजस्वी विराज काकड़े। मैं नीरज शिवतकरार की एक सरपंच हूँ। मेरा प्रवास ऐसा है कि मैं नीरज शिवतकरार गांव में 2014 को शादी करके आई। अच्छा। उसके बाद मेरा यहाँ के सब लोग सामाजिक और राजकीय वारसा बोलते हैं, वैसा यहाँ का सब माहौल था। इस माहौल में मैं रह रही थी। उसके बाद 2017 में मुझे सुप्रिया सुले, जो यहाँ के खासदार है, लेडीज खासदार, वो, और जो पवार साहब है, माजी कृषि, हमारा पुरंदर तालुका है, नीरा कोलवीरे नाम का एक गट है, उसमें जिला परिषद झेडपी का मुझे पद दिया। चुनाव लड़ने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया और मैं कुछ ज्यादा नहीं, कम मतों से मैं हारी। फिर भी मैं पीछे नहीं हटी। महिलाओं में जाना, उनमें इन्वॉल्व होना चालू रखा। फिर मुझे 2021 में फिर एक मौका मिला कि जो नीरज शिवतकरार का जो निवडणूक थी, उसमें मुझे एक बार मौका मिला और मैं यहाँ पर लोगों ने मुझे चुना और मुझे सरपंच बना दिया। सरपंच होने तक का प्रवास यही नहीं खत्म हुआ कि और भी मेरे सामने बहुत जिम्मेदारी आई कम उम्र में, क्योंकि नीरा शिवतकरार ये गांव पुणे डिस्ट्रिक्ट में पुरंदर तालुका में आता है और ये गांव पुरंदर तालुका में सबसे बड़ा गांव है। सब लोगों का यहाँ नीरा शिवतकरार गांव में ध्यान रहता है कि यहाँ कामकाज कैसा चलता है, यहाँ गांव में सब कुछ कैसा चल रहा है, काम कैसा हो रहा है, ये सब
लोगों का ध्यान रहता है। हम यहाँ 17 नीरा शिव तकरार गांव में 17 सदस्य की बॉडी है हमारी। अच्छा। हाँ, और यहाँ मुझे 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 बहुत आनंद है कि यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा लेडीज महिला है। 10 से 11 हम लेडीज महिलाएं यहाँ काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। और हमारे जो 17 की बॉडी है वो पॉजिटिवली माइंड वाली है, इसलिए काम करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। सब लोग सपोर्टिव है, इसलिए मुझे जो काम करने में तकलीफ होनी चाहिए या प्रवास जो है हमारा वो ज्यादा से ज्यादा खड़तर होने से अच्छा चल रहा है। और हमने बहुत ज्यादा लोग हमने ये ठान लिया है कि एकजुट बोलते हैं हम, इकट्ठा होके हमारा नीरज तकरार का अच्छा सा हम विकास करेंगे। ऐसा मेरा प्रवास। बहुत बढ़िया। मैं आपने तो वाकई ही हम सभी को प्रोत्साहन देने में, अपने इस कार्यकाल के बारे में जो बताया उससे हम सभी बहुत प्रोत्साहित होंगे, और आगे की जो यंगर जनरेशन है वो भी आप सबके काम को देखकर आगे बढ़ने का प्रण कर सकेगी। और ये मेरे को बहुत खुशी हुई जान के कि आपके यहाँ पहले आप हारी और फिर आपने दोबारा चुनाव लड़ा और फिर आप पुनः जीती और सरपंच आपको बनाया गया। मेरा दूसरा प्रश्न ताई आपसे ये है कि आप ये कैसे सुनिश्चित करती हैं संविधान के अनुसार इस पूरे ग्राम के शासन में जो आप निर्णय लेती हैं, जो डिसीजंस आप लेती हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस आप लेती हैं, उस पूरी प्रक्रिया में समावेशी और भागीदारी पूर्ण सभी का इंक्लूजन हो, जिसमें महिलाएं सहित सारे समुदायों के सदस्यों को आप शामिल करती हैं। तो कैसे ये सभी का समावेशन आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, और आप क्या सभी को लेके चलती हैं अपने साथ, महिला पुरुष या मार्जिनलाइज सोसाइटी के जो लोग हैं उनको? तो निर्णय लेने में, क्योंकि संविधान का जो ये रूल है कि हम सबको पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट करें, या हम आपको कोई भी डिसीजन लेने में सभी को लेके चलें, तो आप क्या करती हैं जब भी डिसीजन लेती हैं? क्या सबको लेके चलती हैं या क्या करती हैं? जब हम डिसीजन लेते हैं तब हम निश्चित सबको लेके चलते हैं, क्योंकि गांव एक ऐसा नीरा शिव तकरार एक ऐसा गांव है कि जो शिव तकरार है पुराना गांव था, और नीरा गांव ये नीरा नदी की वजह से तैयार हुआ एक गांव है। यहाँ सभी जाति धर्मियों के लोग रहते हैं, और उन लोगों को हम साथ लेके चलते हैं। तो भी जाति रहे जाति वाले लोग हैं वगैरह, उनको हम उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्यों उन्हें क्या पसंद है, क्यों क्या उनको उनके माइंड में क्या चल रहा है कि हमारे जाति वाले लोगों को ऐसा करना चाहिए कि उनका जो विकास है कैसा रहना चाहिए, ये हम उनसे बात करके उनको पूछते हैं, और जो हमें अच्छा लगे उस पॉइंट पे हम ध्यान देके वो काम काज चलाते हैं। इसलिए हम ग्राम पंचायत के ग्राम सभा बोलते हैं, वो ग्राम सभा रहती है, वो लेडीज वाली पण महिला ग्राम सभा, बाल ग्राम सभा और कॉमन पुरुष वाली वगैरह ग्राम सभा रहते हैं। और मागास वर्गीय जो लोग रहते हैं उनकी भी ग्राम सभा रहती है। उस ग्राम सभा में हम पूरा नीरा शिव तकरार में
पहले अनाउंसमेंट करते हैं 2 दिन, और उनके 2 दिन के बाद वो ग्राम सभा ली जाती है। हम्म, जो ग्राम सभा रहती है, यदि बाल ग्राम सभा रहे तो छोटे जो बालक रहते हैं वो हम्म, आते हैं, और उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके लिए क्या करना चाहिए, ये हम उनको पूछते हैं। और उनका जो उनसे जो मिलता है हमें कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। यदि मागासवर्गीय लोग रहते हैं, उनकी ग्राम सभा में उन्हें जो पसंद है, यदि उनके जो विचार है वो हम सुन लेते हैं, और हम क्या उस पर हम क्या कर सकते हैं और कैसा हमारा कामकाज उनके लिए अच्छा रहेगा, ये बताते हुए हम उनको लेके ही यहाँ का सब कामकाज चलता है। उनकी जरूरतें क्या हैं, उनके पास किस चीज की कमी हाँ, है, या हाँ, उनकी परेशानी क्या है, या परेशानी क्या उनको है। हाँ, उनको क्या क्या चीजों को जीवन निर्वाह करने में आवश्यकता है, तो आप हाँ, उनसे बात करती हैं और फिर अपने निर्णय लेती हैं उसके बाद। हाँ। बहुत बढ़िया मैम। तेजश्री विराट काकड़े जी, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जितना हमने जाना और जितना हमने पढ़ा आपके ग्राम निराश्रित के बारे में, वो बहुत, जो वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत आकर्षक है और बहुत ही अद्वितीय है। आपके ग्राम का जो पूरा व्यक्तित्व है, जो पूरा फ्लेवर है, जो डेवलपमेंट का जो भी साइन है, वो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है उसका। मैं आपसे अब ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आप मुझे ये बता सकती हैं कि कोई ऐसा किस्सा बता सकती हैं जहां पर आप हमें ये दर्शाएं कि जो नैतिकता और जो मूल्य हैं, इनके संदर्भ में शहरी परिवेश से आपके ग्राम का जो पूरा माहौल है वो कैसे भिन्न है, मूल्यों और नैतिकता के बेसिस को अगर हम लें तो कैसे आपके ग्राम का जो व्यक्तित्व है, पूरा वातावरण है, वो कैसे भिन्न है शहरी वातावरण से। नीरज शिव तकरार ऑलरेडी, ये नीरज शिव तकरार जो हमारा गांव है वो अभी नगर पंचायत होने वाला है। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया जी। अगले 5 साल में ये अब हमें चुनते हुए 2.5 years हो गए हैं। टू हम्म, एंड हाफ ईयर्स के बाद हम वो जो नगर पंचायत बोलते हैं उसके लिए हम दावेदार है। और ये हम करने वाले हैं। नीरा शिव तकरार एक गांव है जो ग्रामीण भाग बोलते हुए भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा नगर पंचायत यानी कि थोड़ा सिटी जैसा गांव है। लेकिन जो शिव तकरार गांव है हमारा, वो अच्छा। शिव तकरार गांव पहले पहले का वो शिव तकरार गांव था, वो थोड़ा सा ग्रामीण भाग जैसा है। वहाँ पशुपालन, हम्म, खेती वगैरह सब वहाँ होती है। दिखाई देता है। वहाँ के लोग भी वैसे ही दिखाई देते हैं। और ये जो नीरा गांव है, जो नीरा नदी के तट पर बसा हुआ है, हम्म, ये इसलिए यहाँ तैयार हुआ ये गांव नीरा, क्योंकि यहाँ जुबिलेंट नाम की एक कंपनी है। हम्म, और बाहर से आने वाले लोग, व्यापारी, व्यापार करने वाले, या स्कूल स्कूल के लिए आने वाले लोग, यदि ये जुबलेट के कामगार लोग यहाँ रहते हुए, ऐसे ये नीरा जो गांव है वो बढ़ता गया। और यहाँ का जो नीरा नदी है हम्म, उनका एक बहुत एक ऐतिहासिक क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक कथा है। हमारे यहाँ एक अ, लेखक है, लेखक, हम्म, उन्होंने मीरा नदी पर एक
कथा लिखी हुई है कि नीरा नदी कैसी है वगैरह। और नीरा पंचायत मैं बता रही हूँ कि नगर पंचायत होने वाली है। इसके इससे ही पता चलता है कि नीरा शूतकरा गांव का जी वाटचाल जो वाटचाल बोलते कि अगला कदम नगर पंचायत शहरीकरण होने से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन जल्द ही नगर पंचायत होगी। और नीरा शूतकरार ये गांव एक सुंदर और ऐतिहासिक गांव है। और यहाँ आगे नीरा शूतकरार जो नीरा नदी है उसके आगे सातारा डिस्ट्रिक्ट लगती है। ये पुणे जिले का सबसे एंड वाला प्लेस है। और यहाँ जो पालखी बोलते हैं ज्ञानेश्वर महाराज की पालखी, वो पालखी यहाँ हमारे नीरा नदी में उनके पादुका स्नान होती है। अच्छा। यहाँ सोपान काका की भी पालखी यहाँ से ही गुजरती है। तुकाराम महाराज की पालखी भी यहाँ से जाती है। जब वो पालखी वगैरह आती है तब हमारा नीरा शिवतकरार ये गांव इतना खिल उठता है और इतना आनंदमय यहाँ का वातावरण इतना अच्छा रहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम पंढरपुर वगैरह, आपको मालूम है या नहीं शायद, मुझे मालूम नहीं, जो हम पंढरपुर जी बोलते हैं वैसा यहाँ माहौल तैयार होता है। और ऐसा ऐतिहासिक गांव में मैं एक सरपंच हूँ, इसका मुझे बहुत गर्व है। हम भी बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप इतनी कम उम्र में आपने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है। और गांव में चीजों में अभी भी हमारे यहाँ जो प्रगति हुई है वो अभी भी उतनी नहीं है। जो भी कमियां रही हैं, जो भी चैलेंजेस रहे, उनके साथ आपने इस गांव को आगे बढ़ाने की जो आपने कल्पना की है वो वाकई ही सराहनीय है। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी। मैंने ये देखा कि आपने एक महिला सशक्तिकरण बैठक की थी, उसका आयोजन किया था और आपने उसमें अपनी स्टॉल्स लगाई थी। और मैं जानना चाहूंगी उसमें आपने कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनको कैप्चर किया है और आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली, आपका खुद का प्रेरणा स्रोत क्या था कि आप महिला के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे प्रयास अपने ग्राम में और आसपास के इलाकों में कर रही हैं? महिला सक्षमीकरण का मुझे इसलिए ऐसे मैंने सोचा कि महिला सक्षमीकरण होना चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने में महिला सिर्फ घर का काम या अपने बेटे इससे ही जुड़ी थी। उनको बाहर का यदि बैंक का, यदि बाजार वाला, यदि बाहर घर के बाहर वो निकलती नहीं थी। लेकिन यहाँ अब हम जैसा जमाना आगे बढ़ता जा रहा है और हमारे नीचे की महिला या आजू बाजू आसपास के गांव की महिला बाहर निकलनी चाहिए। उनको कुछ तो बैंक के जो बैंक वाला काम या बाकी का वो भी आना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ के एक दो ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे रखे थे कि वहाँ महिलाओं में बहुत खूबियां रहती है। उनके अंग में ऐसे गुण रहते हैं कि वो डरती है कि लोग हंसेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बोला तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन नीरा की महिला इतनी एक्टिव है कि नीरा शिवतकरार गांव में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे। सुनंदा पवार हमारे शारदा इंस्टीट्यूट के जो मेन है, सुनंदा पवार विश्वस्त, वो बचत गट जो पुणे जिले में और
अहमदनगर जिले में जो बचत गट है उनको उनको एकत्र करते हुए वो काम देते हैं बचत गट को। अच्छा अच्छा। और उनका मानना है कि महिलाओं को खुद के पाँव पे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। महिला सबलीकरण बोलते हैं उसको, वो करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बचत गट स्थापना बचत गट जो स्थापित बचत गट है उनको निरनिराले कामकाज दिया। कोई तिखट वगैरह मसाले बनाते हैं, कोई लोणचं वगैरह मार्केट में बोलते हैं, आचार, वो आचार वगैरह बनाते हैं। हमारे पुरंदर तालुके के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जो पैकिंग करते हुए अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, महिला अच्छा पैकिंग करते हैं, पैकिंग करते हुए वो प्रोडक्ट्स अब मॉल में रखे हुए हैं और उसपे हमारे यहाँ पुरंदर तालुका का नाम है। ये किस वजह से कि ये जो महिला सक्षमीकरण है, इसलिए मुझे भी लगा कि नीरज शिवतकरार के महिला भी ऐसे आगे आए, इसलिए मैंने एक दो कार्यक्रम रखे थे जो स्टॉल वगैरह लगाए थे। इसलिए कि जो खाद्य पदार्थ वगैरह है खाद्य पदार्थ यानी कि जो चकली वगैरह होते हैं, लड्डू होते हैं, जो हम रख सकते अच्छे से पैकिंग करते हुए ज्यादा दिन तक वो अच्छे रख सकते ऐसे बनाते हुए लेडीज को 2-4 रुपए मिलेंगे और उन्हें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। और हैंडमेड जो वस्तु होते हैंडमेड, हैंडीक्राफ्ट, हाँ हैंडीक्राफ्ट, वो भी चीजें हमने महिलाओं को सपोर्ट करते हुए जैसे बाम्बू की टोकरिया, बाम्बू वाला जो चीज होते बाम्बू से बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट, वो उनसे हमें उन महिलाओं को हमने प्रोत्साहित किया और उन्होंने अच्छी तरह से बनाया भी। और आगे आसपास के परिसर में महिला बनाते हुए अच्छे से कुछ महिलाएं सिलाई काम करते हैं, जो अच्छे से बैग वगैरह तैयार करते हैं और परचेज भी करते हैं। ऐसे महिलाओं को हमने आगे तक लेके आना चाहिए, ऐसे हमने सोचा और ऐसे हमने 2-3 बार कार्यक्रम भी रखा था और उसको अच्छा सा प्रतिसाद भी मिला। वो देख के हमें भी खुशी हुई कि हमारे नीरज शिवतकरार एक गांव की महिला भी आगे बढ़ते हुए दिख रही है। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने महिला सशक्तिकरण के लिए अपने ग्राम की जो महिलाएं हैं वो जिस भी कार्य में दक्ष हैं, सिलाई, कढ़ाई, अचार, पापड़, इन सब बनाने में वो बनाती हैं और आप उनको आगे तक ले जाते हैं ताकि वो 2 पैसे अपने लिए भी कमा सकें और अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। ये बहुत ही बड़ा कार्य है जो आप एक महिला के लिए, एक घर के लिए आप कर रही हैं, क्योंकि महिला के पास बहुत गुण हैं और बहुत क्रिएटिव होती है महिला, पर उनको मौका नहीं मिलता आगे आने का, उनको वो प्रोत्साहन नहीं मिलता, उनको वो माहौल नहीं मिलता, उनको वो साजो सामान नहीं मिलते जिनसे वो बहुत कुछ जीवन में कर सकती हैं। तो मैं इस बात को सुन के जान के बहुत खुश हूं और मैं जानती हूँ हमारी ऑडियंस भी बहुत खुश होगी कि आप एक तो खुद महिला सरपंच हैं और दूसरा महिला की पीड़ा को, महिला की इच्छा को, महिला के मन को बहुत बेहतरी से समझ सकती हैं और उनको आगे लाने के लिए आपने जो आगे हाथ बढ़ाया है, हम भी आपके साथ हैं और हम चाहते हैं बहुत सारे जगहों में हम ग्राम के स्तर पर बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, हम जो गांव की महिला को हम एम्पावर करें और उनमें ये विश्वास दिलाएं कि वो भी अभिन्न हिस्सा है इस सोसाइटी का, इस इकोनॉमी का, जिसमें वो चाहे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें, कदम लें तो वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। पर उसके लिए
आप जैसे लीडर्स का, आप जैसी महिला का, जिसकी सोच पॉजिटिव हो, जिसकी सोच में लोगों की भलाई निहित हो, जिसकी सोच में पूरे देश का, ग्राम से शुरू होके शहर का, डिस्ट्रिक्ट का, देश का डेवलपमेंट निहित हो। तो मैं सच में आपको इस बात के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप जो स्टेप्स उठा रही हैं हमारी महिलाओं के लिए अपने ग्राम में, वो बहुत ही सराहनीय है। एक आखिरी प्रश्न श्री तेजश्री विराज काकड़े दीदी या ताई, और मेरे लिए तो आप मेरी छोटी बहन हैं। तो मैं तेजश्री आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस पूरे सफर में, आपने बताया 2014 से आप इस सफर में हैं, जहां पर आपने हार देखी और फिर जीत का सेहरा आपके सर बंधा। तो इस पूरे सफर में जहां पर आपको ग्रामीण विकास और प्रशासन से संबंधित जो भी अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जो भी अवसर आपको मिले, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड चैलेंजेस, इस पूरे रास्ते में जो आए, मैं चाहती हूं उनके बारे में भी सूक्ष्म में आप हमें कुछ बताएं, संक्षिप्त में कुछ बताएं। कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसी उपलब्धि है, वो आप क्या हमारे साथ साझा कर सकती हैं कि जिस पर आपको गर्व है कि आपने अपने गृहनगर के लोगों के जीवन को अपने किसी कार्यकलाप से लोगों को प्रेरित किया हो और प्रेरणा दी हो? कोई ऐसा वाकया आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? हम 2021 को हमारा चुनाव हुआ। उसके बाद जब रेनी सीजन आया, तब यहाँ एक पूल है बड़ा सा, वहाँ बुजुर्ग लोग घूमने के लिए सुबह जाते हैं। वहाँ बहुत ग्रास ग्रास जो होता है बहुत आया था। उन्होंने हमें निवेदन किया था कि सरपंच साहिबा कि आप, हमें बहुत तकलीफ होती है आने जाने में, जो बाजू का जो एरिया है हम जहाँ पैदल चलते हैं वहाँ बहुत ही कीचड़ वगैरह ऐसा वैसा है, तर आप कुछ तो करो। मैंने 2-3 कामगार लगा के वो निकाला, और उन्होंने हमें जो एक क्या बोलते हैं, एक पत्र जो लिफाफा पुराने जमाने में रहता है पत्र, ऐसा पत्र लिखकर मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें हमारा मार्ग खुला कर दिया। जो हमें तकलीफ होती थी उसे आपने नजरअंदाज करते हुए देखा और हमें वो साफ कर दिया, इसलिए धन्यवाद। मेरे पास अभी भी है, मैंने अच्छे से रखा है, और हस्ताक्षर, अच्छे हस्ताक्षर में उन लोग बुजुर्ग लोगों ने अच्छे से मुझे लिख कर वो दिया था। मैं शॉक थी कि मेरा यह पहला काम ऐसा था कि जी काम कर रही हूँ कि लोग क्या चुनाव होते हुए घूमते ही नहीं, जी सिर्फ वोट मांगने के लिए जाते हैं, हर घर में घूमते हैं। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ 2-3 महीनों से कि हर वार्ड नंबर म्हणजे जो इलाका है जहाँ हमारे सदस्य चुनकर आए हैं, उस वार्ड में जाते हैं और उस सदस्य को लेके हर घर हम उनकी परेशानियां क्या है, उनको कुछ तकलीफ है क्या, उनको क्या पसंद है, क्यों उनको क्या चाहिए, हमारे हमसे उनको क्या चाहिए,
इसलिए हम घूमते हैं। तो लेडीज वगैरह बोलते हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी नहीं था कि चुनाव होता है जो तो काम करता है, इतना ही ग्रामीण भाग में इतना ही स्थित रहता है। लेकिन आप हर घर में जाते हैं, उनके जो समस्याएं है वो समस्या पूछते हैं और वो समस्या की निवारण करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि सरपंच हर घर में पहुंचने वाला सरपंच हमें नीरज उतकरार में मिला है। ये मेरे खुशी की बात है कि मैं हर महिलाओं की पीड़ा जानना चाहती हूँ और उनको क्या तकलीफ है। जैसे ड्रेनेज वाटर रहेगा, पानी नहीं आता, कचरा गाड़ी गंदा गाड़ी नहीं आती वगैरह, छोटे मोटे जो उनकी समस्या है वो जानने के लिए मैं ये कार्यक्रम रखा है कि हर रोज में 2 आवर्स, शाम के 2 घंटे गांव के लिए निकलती हूँ और हर घर जाते हुए उनकी समस्याएं पूछती हूँ। बहुत बढ़िया। तेजश्री जी, आपके मन में जो लोगों के लिए सेवा भाव है, उनकी परेशानियों को समझने का आप में जो पेशेंस है और जो परेशानियां हैं उनको निवारण करने के लिए आपके पास जो सुझाव हैं और जो कर्म आप कर रही हैं मैम, वो बहुत कमेंडेबल है, वो बहुत सराहनीय है और वो हम सभी के लिए या आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं आपसे बस एक चीज कहूंगी कि आप महिलाओं के लिए, जो नई नस्ल के जो बच्चे आगे निकल के आ रहे हैं, और पुरुषों के लिए भी आप ऐसी क्या 2 बातें कहना चाहेंगी कि महिलाओं को कैसे वो सपोर्ट करें? पहली बात, महिलाओं में वो क्या 2 गुण होने चाहिए कि वो आगे आ सकती हैं, और पुरुष समाज और हमारा समाज वो कैसे उनको सहयोग दे कि हमारी महिलाएं और हमारे यहाँ और भी ग्राम के सरपंच हमारी तेजस्वी दीदी जैसी और आगे बढ़ सके। तो आप क्या कहना चाहेंगी? आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगी आज की नई जनरेशन की जो बालिकाएं हैं उनके लिए और जो पुरुष समाज है उनके लिए? मेरा ये सुझाव रहेगा कि हर आदमी के पीछे एक औरत भी रहती है और एक औरत सक्सेसफुल औरत के पीछे सक्सेसफुल आदमी ही रहता है। बिल्कुल सही। इसलिए इसलिए जो औरतें कुछ करना चाहती है उनको पुरुषों ने सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको परेशान या कुछ कम समझते हुए उनको उनकी जो उनमें जो पावर है वो दबानी नहीं चाहिए। जो जो करना चाहती है उनमें जो एक गुण होता है वो आगे आने के लिए, वो औरत आगे, वो महिलाएं आगे आने के लिए पुरुषों ने उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि महिलाएं वैमानिक भी है, हाँ। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि अभी कुछ घरों में ऐसा है कि सिर्फ काम और जो लड़के वगैरह है, बच्चे और काम, यही पर महिला का सफर खत्म होता है। और म्हणजे 2 भिन्न केसेस है कि एक महिला सिर्फ घर का काम करती है, ना कि बाहर भी जा सकती है, और एक महिला है कि वो वैमानिक है। महिला, आज की महिला सभी क्षेत्र में आगे है। ऐसा कोई भी एक क्षेत्र नहीं है कि जहां पे महिला नहीं है। इसलिए मैं जेंट्स लोगों को बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं का में जो गट्स है वो जाने
और उनको सपोर्ट करे कि यदि कि आज की ये जो महिला है कि वो आगे बढ़ सके। हमारा नीरा तकरार गांव ये इतना अच्छा गांव है और इतना सपोर्टिव गांव है कि ग्रामीण भाग है कि यहाँ महिलाओं का इतने अच्छे से सम्मान करते हुए महिलाओं का निरनिराले कार्यक्रम यहाँ पे उपस्थित यहाँ पे कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। जी मंगला गौर एक महाराष्ट्रीय कार्यक्रम है। तनुजा शाह बोल के यहाँ एक लेडी है, उन्होंने एक धमाका ग्रुप तैयार किया हुआ है और उस ग्रुप ने मंगला गौर का एक ऐसा कार्यक्रम किया कि वो कार्यक्रम वो वीडियो पूरे महाराष्ट्र में यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने देखा और शहरी भाग में भी महिलाओं ने उनका आदर्श लेते हुए कुछ तो ऐसे भी हम कर सकते, ऐसे करके उन्होंने वो कार्यक्रम वहां भी रखे थे और उन्होंने वो कमेंट्स थे, हम कमेंट्स पढ़ते थे, तब वो बोलते ग्रामीण भाग में ऐसे अच्छे कार्यक्रम महिला रख सकती है तो हम क्यों नहीं। हम बिल्कुल तो शहर बिल्कुल में रहते हैं, ग्रामीण भाग में लेडीज घर के काम काज करते हुए ये सब करती है तो हम क्यों नहीं, हमारे पास तो सब है, टाइम है, पैसा है वगैरह सब है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये प्रेरणा लेते हुए पुणे में औरंगाबाद में महिलाओं ने वैसा कार्यक्रम किया मंगला गौर का, जो महाराष्ट्र में मंगला गौर कार्यक्रम होता है वो आदर्श लेते हुए बाकी महिलाओं ने भी वो कार्यक्रम बाहर ले लिया। ये सब जानकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ उस गांव में, महाराष्ट्र में, उस गांव में आपने इतना विकास करवाया और लोगों को इतना मौका दिया, महिलाओं को खास तौर पर, कि वो आगे आए और स्वावलंबी बने। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हर behind every successful man there is a female, and of course behind every successful female there is a man. Sharda University ग्रेटर नोएडा में भी 48 to 50% महिला स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और जो डीन्स हैं हमारे यहाँ 14 स्कूलों की, उनमें से भी मैक्सिमम महिलाएं ही हैं जो लीडरशिप पोजीशन पर हैं। तो आज हमारे देश का विकास इसीलिए चहुमुखी हो रहा है क्योंकि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनकी परेशानियों में, उनकी खुशियों में, उनके संघर्षों में आगे बढ़ रही हैं। और मैं ये बिल्कुल ठीक कहना चाहूंगी कि महिलाओं की स्थिति एक राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति को दर्शाती है। हमारे शास्त्रों में भी महिलाओं को आत्मनिर्भरता का, आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है, और महिलाओं में शिक्षा और आत्म चेतना के फैलाव ने उनकी प्रगति को आगे बढ़ाया है। और आपसे बातचीत करके आपका सरपंच होना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इस कड़ी में जहां पर हम हर स्त्री शक्ति को सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, शक्ति समागम सेलिब्रेटिंग विमेन पावर, ये एक ऐसा फोरम है जो शारदा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ने और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स एंड IKS कमेटी ने शुरू किया है, जिसमें हम जानना चाहते हैं अपनी महिलाओं से, अपनी बहनों से, कि उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनको क्या क्या तकलीफें हुई और वो कैसे अनस्कैथ्ड इन तकलीफों का, परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ी और अपने मकाम पर पहुंची। तो इस बात के लिए, आपका अपना समय देने के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हार्दिक धन्यवाद, heartfelt thanks and gratitude, ma'am, to you for gracing the occasion, for being the pillar of strength,
for being a true example of women empowerment. We are celebrating women in power. तो मैं श्री तेजश्री विराज काकड़े दीदी को आज धन्यवाद देना चाहती हूँ कि विकास के पथ पर आप और आगे बढ़ें और अपने ग्राम का और अपने स्टेट का और अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। हम सभी आपके साथ हैं और इस कड़ी में आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच एंड कीप डूइंग द गुड वर्क, keep bringing peace and happiness in people's life. That is what we mean by our efforts. Thank you very much. Dhanyavad. As we celebrate our Constitution Day, let us strive to embody these teachings in our life, fostering a society that respects diversity and upholds the principles that have echoed through the ages. Our Constitution, the cornerstone of our democracy, echoes the vision of a just and inclusive nation. As a member of Sharda University family, all of us, faculty, staff, and students are torchbearers of this legacy, entrusted with the responsibility to preserve and strengthen the ideas enshrined in our Constitution. This extends so also to every villager of Nira, Shivatkar, and to every Indian citizen of our proud country. Let us pledge to cherish our diversity and uphold the values that make India a beacon of democracy. With these words and an expression of high gratitude for the precious time of our esteemed guest, Sarpanch Sahiba, Srimati Tejasvi Kakade, and the most dynamic host, Madam Professor Anviti Gupta, Dean, School of Humanities and Social Sciences, Sharda Universities. Let us conclude this meeting with loads of good wishes, endless positivity, and a promise to meet again very soon, next month, with another episode and a surprise guest of esteem. Thank you, Dhanyavad, and loads of good wishes. Till we meet again.